اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے چند کلمات خراجت کے طور پر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پیش کروں، آئیے ان سے مل کر حاجی کل ختم رسول مولائی کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے خانہ میں جھوم جھوم کر کلمہ پاک سے گاڑی سوال کریں، پڑھنے والا آواز بلند شیخ الاسلام بڑی آپ لوگوں کی ایسی سنت مجھے امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کا آج گوشے پاک بریلی شریف میں منایا جا رہا ہے۔ بعد نماز جمعہ جن کا کل شریف 2:38 منٹ پر الحمدللہ بریلی شریف میں ہوا، اور بریلی شریف ہی کی کیا بات ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی کونا باقی نہیں ہے جہاں پر سیدنا اعلیٰ حضرت کا عرصہ مقدس نہ منایا جاتا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں، حقیقت تو یہ ہے اور عرض کروں، دعویٰ کروں دلیل کے ساتھ کہ مکہ المنورہ، مدینہ المنورہ میں بھی ان سے اعلیٰ حضرت کی دھوم رہتی ہے، وہ فاتحہ خوانی ہوا کرتی ہے۔ ہندوستان کی وہ شخصیت کہ جس کے کونے کونے میں مرید، کونے کونے میں خلیفہ اور اعلیٰ حضرت، ہم بے سہاروں کے سہارا اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت ہم سب کے ایمان کے محافظ اعلیٰ حضرت۔ آئیے ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ہم لوگ جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقائی نعمتی سیدنا بابا کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اگر آپ آج عقیدت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں چادر چڑھاتے ہوں گے تو یہ چادر امام احمد رضا کی دین ہے۔ اگر آج ان کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر سلام پیش کر رہے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کی یہ دین ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں، انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ حفیظیہ مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا مستقیم صاحب ابھی اشعار پڑھ رہے تھے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، حالانکہ میں جو بولنے کو تھا وہ بھی تھوڑا سا بول دوں گا، لیکن جب انہوں نے مکہ پڑھا تو میرا ذہن بھی پلٹا سیدنا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلو ایک جملہ اور آپ کو دے دوں ایمان کی تازگی کے لیے کہ دنیا میں جب اللہ والے کا عرس زمین پر ہوا کرتا ہے تو عرش اعظم پر فرشتے اس کے عرس مقدس کو منایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی فضیلتیں ہیں۔ آئیے میں آپ لوگوں نے ایک شعر سنا اعلیٰ حضرت کا، مکے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، کوئی کیوں تیری پوچھے بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہ شعر کب کا ہے، اعلیٰ حضرت نے کب لکھا؟ اگر ایک ایک جملے کو ایمان کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا واقعہ بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد فاتحہ کا پروگرام شروع ہوگا، یعنی جس کو ہم لوگ کل شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت جب آپ مکہ میں آپ نے کتاب لکھی ہے دولت المکیہ، 350 صفحات پر مشتمل کتاب، آج کا کوئی رائٹر، آج کا کوئی مصنف اگر آج ایک عنوان بھی لکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہزاروں کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، مدد لکھتا ہے، مگر قربان جاؤ سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان پر۔ آپ مصنف بن کر نہیں گئے تھے، آپ کتابیں لکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ زیارت حرمین کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور جب وہاں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لیا، مسئلہ جب پوچھا گیا تو مسئلے کے حل میں آپ نے کتاب لکھی جس کا نام دولت المکیہ ہے، 360 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، اور جانتے ہو یہ کتاب علم غیب مصطفیٰ پر لکھی گئی تھی۔ حرم شریف کے شریف مکہ کے پاس جب یہ کتاب گئی اور انہوں نے علم غیب پر اعلیٰ حضرت کی جب دلیلیں پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کو بلایا کہ ہندوستان سے آنے والے مولانا احمد رضا کو ہمارے پاس لایا جائے۔
शरीफ मक्का के पास आला हजरत को पेश किया गया और आला हजरत को जब पेश किया गया हालत ये बताई जाती है। अल्लामा अमजद अली साहब किबला लिखते हैं अपने कलम से कि शरीफ मक्का बैठे हुए थे। बैठने का तरीका ये था कि जिस तरीके से हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, जैसे ही आला हजरत को देखा फौरन अपने पैरों को ठोकने लगे। आप ही इमाम अहमद रजा है, आपका नाम अहमद रजा है। कहा हुजूर मैं ही अहमद रजा हूँ। कहा बैठ जाओ। आप बैठ गए। कहा आपने किताब बड़ी अच्छी लिखी है, दलीलें बड़ी अच्छी लिखी है। दुनिया में जब कोई राइटर कोई अच्छी चीज लिखता है दुनिया वाले उसको कोई ना कोई इनाम देते हैं। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? हम जैसा अगर कोई मौलवी होता चंद सिक्कों पर बिक जाता। हुजूर आप तो रियाल के मालिक हैं, जितना चाहे उतना अता कर दें, आपके लिए कम है। मगर ये इमाम अहमद रजा खान है। आप इरशाद फरमाते हैं शरीफ मक्का अगर वाकई में आप खुश हो गए हैं कि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जो मैं मांगता हूँ वो दे दीजिए। कहा मांग लीजिए। कहा हुजूर मैं ये मांगता हूँ कि कायदा ये है, कानून ये है कि रात के 10 बजे गुंबदे खजरा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, किसी को इजाजत नहीं रहती है, मगर मुझे एक रात के गुंबदे खजरा में गुजारने की इजाजत मिल जाए। मैं हुजूर की बारगाह में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। शरीफ मक्का ने अपने लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा आज अहमद रजा के लिए कानून तोड़ दिया जाएगा, इनको रात भर गुंबद खजरा में रहने दिया जाए। अल्लाह अकबर। जब सरकार आला हजरत रात भर सरकार मदीना की बारगाह में रहे होंगे आप जान सकते हैं आपका ईमान तड़प जाएगा। अगर आज हम बाबा कमल पोश की बारगाह में बैठे हुए हैं जिनको अकीदत से अपना आका मानते हैं, अगर आज हमारे सामने वो खड़े हो जाए तो हमारा ईमान क्या कहेगा, हमारी आंखें क्या बोलेंगी। मगर कुर्बान जाओ सैयदना इमाम अहमद रजा खान है। आप बैठ गए। या रसूल अल्लाह आपने किसी गुलाम की मोहब्बत को नहीं तोड़ा है, आपने किसी अकीदत को नहीं तोड़ा है। मैंने ये सुना है अल्लाह के रसूल जैसे कल आप जिंदा थे वैसे ही आज आप जिंदा है। आका कब्र अनवर से बाहर तशरीफ तो लाइए, मैं आपकी जियारत कर लूं। मगर अल्लाह के नबी की कब्र शक न हुई। रसूल पाक बाहर तशरीफ ना लाए। आला हजरत कलम चलाते रहे, नाते लिखते रहे। लिखते लिखते जब मायूस हो गए तो कहने लगे कौन कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। इतना शेर जैसे ही आपने लिखा कब्र अनवर फटी और कब्र अनवर से बाहर रसूल पाक की जाते मुबारका तशरीफ लाई और अहमद रजा को आपने सीने से लगा लिया। और जब अहमद रजा को सीने से लगाया तो अहमद रजा अपनी जबान से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहमद रजा कहते हैं अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये है। ये आला हजरत है। आला हजरत की फजीलत कौन बयान करेगा? हकीकत तो ऐसी है कि रात में कुरान लंबा करने की वजह से नींद का गलबा मेरी आंखों पे जरूर है। यकीनन ऐसा हो गया है कि जहन भटक रहा है, मगर अहमद रजा की गुलामी में हम इसलिए खड़े हैं, अहमद रजा के लिए खराज अकीदत इसलिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर जुमला दे रहा हूँ। ऐसी शख्सियत जिसके ऊपर पीर नाज करता हो तो हम गुलामों को पहले नाज करना चाहिए। अल्लाह अकबर। महरेरा के सादात आइए मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलूं। आपके पीरो मुर्शिद ने कहा था रब ने अगर पूछ लिया आप क्या लाए हो तो अहमद रजा पेश कर दूंगा। अब वहां पहुंचकर हम कहते हैं ऐ मेरे आका अगर आप अहमद रजा को अपनी शफाअत के लिए पेश करते हैं तो हम गुलाम अपने आका को हम गुलाम अपने आका को क्यों शफाअत के लिए पेश नहीं कर सकते हैं? अल्लाह अकबर चीज मैं आपके सामने अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आला हजरत की शख्सियत क्या है, आला हजरत की जात क्या है। आला हजरत की बरेली में जिस वक्त आला हजरत की उम्र 8 साल की थी उस वक्त एक वहां पर मजदूर रहते थे, बड़े कामिल मजदूर थे। लेकिन बात ये थी कि जिस्म पर कपड़ा नहीं रहता था, न कुर्ता था न पैजामा था न टोपी थी, एक लंगोट बांध कर वो घुमा करते थे। दुनिया उनको दीना मियाँ के नाम से याद किया करती है और इनकी शोहरत इसलिए हो गई थी। एक दिन ये पटरी पर खड़े थे, उधर से ट्रेन आ रही है, लोगों ने कहा दीना शाह हट जाइए, ट्रेन सामने आ रही है। लोगों ने कहा दीना शाह हट जाइए,
आप मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, जहां अल्लाह का चाहने वाला खड़ा हो जाता है दुनिया का रुख पलट देता है, मगर वो अपने रुख पर खड़ा रहा करता है, उसका रुख कोई नहीं पलट सकता है। लोगों ने कहा हुजूर जान देने के लिए आप तैयार हैं, ट्रेन आ रही है। आपने कहा आ रही है तो आने दो। हकीकत ये है ट्रेन की रफ्तार कैसी हुआ करती है सब जानते हैं, मगर दीना शाह की ये ज़बाने में लिखा हुआ है कि जब बिल्कुल उनके करीब ट्रेन आ गई आपने ऐसे हाथ लगा लिया जैसे शफकत से कोई बाप अपने बेटे के सर पे हाथ रख दिया करता है, फौरन ट्रेन रुक गई। ये दीना शाह है, यही दीना शाह मोहल्ला सौदागिरान में आ गए। आला हजरत की 8 साल की उम्र है। आला हजरत को देखा, फौरन एक गली से निकले दूसरी गली में भाग गए। लोगों ने पूछा दीना शाह आज क्यों भाग रहे हो, तुम्हारा ही नाम तो वो है कि तुमने ट्रेन को एक हाथ से खड़ा कर दिया था। आपने कहा वो ट्रेन से खड़ी हो गई है। ये सच्चा आलिम दीन आ रहा है, इसकी जबान कभी खड़ी नहीं हुआ करती है, कभी रुका नहीं करती है। कहा हुजूर मतलब क्या है? कहा मतलब ये है कि मैं बरहना हूँ, मैं नंगा हूँ, मैं शरीयत के खिलाफ कपड़े पहना हूँ, मेरा घुटना खुला है और अगर खुले घुटने पर पकड़ लिया अहमद रजा का न जबान रुक सकती है न कलम रुक सकता है। मेरा सब कुछ अपनी जगह है, मेरा पावर अपनी जगह है, मगर अहमद रजा की जबान अपनी जगह है, इसलिए मुझे छुपा लो। लोगों ने कहा था एक आलिम को देख कर डर गए हो, तो आपने कहा था दीना शाह ने एक आलिम को देख कर नहीं, सच्चे आलिम दीन के इल्म को देख कर मैं डर गया हूँ। इसलिए कि आलिम होना और है और आलिम की हक्कानियत पर कायम रहना और है। बड़े बड़े उलमा बिक गए, बड़े बड़े मुफ्ती बिक गए, बड़े बड़ों का पैर जमीन में धंस गए, मगर करम है उस नबी करीम का बरेली वालों पर न जबान बहकी है, न कभी कलम बहका है, न कभी फतवा बहका है। जो घर की खानका में कहा है वही टंके की चोट पर कहते हुए नजर आते हैं। बस एक बात मैं आपके सामने और अर्ज कर दूं, इंशाअल्लाह उसके बाद फातिहा का प्रोग्राम रख दिया जाएगा। आला हज़रत की जबान ने कभी गलती नहीं की है। हम लोग बोलते हैं तो 50 गलतियां हो जाया करती हैं, मगर आला हज़रत की जबान हमेशा जो कह देती थी सच हुआ करता था। होता क्यों था आखिर, वजह क्या है? आइए मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलूं। शेर पंजाब हज़रत शेर मोहम्मद मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरफपुरी पंजाब के रहने वाले, अपने वक्त के बहुत बड़े बली, अल्लाह अकबर। कहते हैं एक दिन मैं बैठा हुआ था, रात में वजीफा कर रहा था, नबी पाक पर दरूद पढ़ रहा था, इसलिए कि नबी ने वादा किया है कि जो हम पर दरूद पाक भेजेगा इंशाअल्लाह मैं उसके ख्वाब में जियारत में जरूर आऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत शेर मोहम्मद शेर मियाँ फरमाते हैं कि मैं वजीफा करते करते सो गया और जैसे ही सोया ख्वाब में मैंने ये देखा कि इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। मैंने खुशी होकर पूछ लिया, मैंने खुशी से पूछ लिया, ऐ अल्लाह के रसूल क्या यही तरीका है गौसे आजम की बारगाह में पहुंचने का? मुस्कुराकर इरशाद फरमा दिया, जो आका के पास तरीका है, जो आका के लिए रास्ता है वही गुलामों के लिए भी रास्ता है। मुझे दिल से याद किया, मैं हाजिर हो गया। गौस को याद करेगा तो गौसे आजम भी हाजिर हो जाएंगे। यही शेर मोहम्मद मियाँ कहते हैं। फिर मैंने वजीफा गौसे आजम के नाम को शुरू कर दिया। एक दिन गौसे आजम भी ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने पूछ लिया, हुजूर इस दुनिया के अंदर आपका नाइब कौन है, आपका खलीफा कौन है, आपका नाइब कौन है? कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गौसे आजम ने कहा, मेरे नाइब को ढूंढते हो तो बरेली में चले जाओ, अहमद रजा मेरा नाइब वहां रहा करता है, अहमद रजा मेरा नाइब है। यही हजरत शेर मोहम्मद है। कहते सब सुबह को उठे, लोगों से कहा सामान तैयार कर लिया जाए। कहा क्यों? कहा बरेली चलना है। कहा क्या वजह है? कहा बरेली में कोई अहमद रजा है जो गौसे पाक का नाइब और खलीफा है, उनसे मुलाकात करने के लिए। अल्लाह अकबर। अपने मुरीदों के साथ आए। इधर जब वो आ रहे थे और जैसे ही बरेली स्टेशन पे उतरे, सरकार आला हजरत ने अपने मुरीदों से कहा, जाओ ऊपर का कमरा साफ कर दो, वहाँ हजरत के लिए वहाँ बिस्तर बिछा दो, इसलिए कि शरफपुर से शेर मोहम्मद मियाँ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जरा निगाहों का तवस्सुल से देखो, आने वाला पंजाब से आ रहा है, मगर बाला हजरत मोहल्ला सौदागिरान में बैठ कर आने वाले मेहमान की आंखें देख रही हैं। आपने इरशाद फरमाया, फाटक पर खड़े हो गए इंतजार में, और जैसे ही हजरत शेर मोहम्मद साहब आए, कहा मेहमान को ऊपर ले जाया जाए। 3 दिन आपने मेहमान नवाजी की। अब 3 दिन के बाद चल दिए, न कुछ बात हुई न चीत हुई। 3 दिन के बाद जब पंजाब वापस गए, मुरीदों ने पूछा, हुजूर किस लिए गए थे, मकसद क्या है? कहा मकसद मत पूछो, जो सोच के गया था वो कुछ न कर पाया। कहा क्या सोच के गए थे? कहा सोच के ये गए था आला हजरत से मुलाकात होगी, कुछ गुफ्तगू होगी, लेकिन कुछ बोलने की ताकत न रही। कहा क्यों? कहा इसलिए कि
کہ جب میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا تو میں نے آنکھوں سے یہ دیکھا اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے امام الانبیاء محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا جلوہ بار ہے اور میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اے احمد رضا سن، میں بولتا چلا جاؤں تو لکھتا چلا جا، میں کہتا چلا جاؤں تو سنتا چلا جا، اور جس کی زبان پر اللہ کے نبی کی زبان چل رہی ہے وہ زبان کبھی خطا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ امام احمد رضا خان ہے، دنیا آج سے نہیں آخر تک دم توڑ دے تعریف کرتی رہے مگر احمد رضا کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ ہے جس کا اللہ کے نبی نے مدینے میں انتظار کیا ہے وصال کے بعد، اور جب روح قبض ہوئی نبی نے اپنے آغاز سے محبت میں احمد رضا کو لے لیا ہے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر سچی عقیدت و محبت کے چلنے کے ساتھ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ باقی جو بھی فاتحہ کا سامان ہے وہ لا لیا جائے تاکہ وقت میں تنگی نہ ہو اور فاتحہ کو شروع کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔